Good morning, dear students. So today we are going to be start a new chapter, theories of failure. So a theories of failure has been used for basically for when we are going to be design a component or machine component or a structural component, we need to be apply these theories, and these theories. The advantage of this theory is that you are able to know at what amount of that loading material may fail. So if you know that, so you can design in such way that so material not fail even after getting much a permissible amount of the loading. So let's see the theories of failure, and in this our syllabus we have five theories of failures. So soon we are going to be discuss about it. So we have the theories, these five theories of failure. See that the name and as well as the discoverer name, who invented this theory, who proposed this theory. So you have to remember in two way. First, by the this name, maximum principle stress theory. So maximum principal stress theory. So this is also called as the Rankine theory. So you have to remember in this way. So maximum principal stress theory, Rankine theory, maximum shear stress theory, Tresca theory. So and maximum principal strain theory, Saint Bernard theory, maximum strain energy theory, Higg theory, and maximum shear strain energy or distortion strain energy theory. And also we can say this is a von Mises theory. So you can remember easily the first one is called maximum principal stress. We have maximum principal stress. Remember Mohr circle. In Mohr circle, we can get the principal stresses. So maximum principal stress in Mohr circle diameter at the top and bottom, you are getting the shear stress. The maximum shear stress theory. Then when again third number, maximum principal strain theory. So where is the stress? There must be a strain. So first one is a maximum principal stress. Third one is maximum principal strain theory. And the name of scientist or that is Saint Venant theory. And fourth one is the maximum strain energy. And fifth one is the maximum shear strain energy or distortion energy theory. So we have these five theories. And these there has some in the first series you can say the first two, this one here the failure cause of the failure is stress develop inside the material. You can see that what is the cause of failure of the material due to the stress develop. First one we can say there is a stress, and second one also there is shear stress. Shear stress is also a stress. So first two, the cause of failure of the material is stress. And third one, you can say that the cause of failure is strain. Due to the strain, material may fail. And last two is due to the energy. So material is failed due to the energy trapped or absorbed by the material when it is loading takes place. So these five theories of failure you try to remember with the name of their inventor. So I already told you the failing factor जिस कारण से fail होता है. So first two is the stress, third one is strain, and last two is due to the energy. So this is the falling factor. You might be remember if you remember the name of the theory. It's very simple. So let's come to discuss the first one. The as know that as the name implies, the maximum principal stress. So somehow we are going to be discuss about the principal stress. So this theory say when the maximum principal stress induced in the material under complex loading. Complex loading means if you are applying more than one loading, x-axis, y-axis, z-axis, or sometime in inclined axis.
So when you are applying such kind of loading is there, that is called the complex loading. So understood, when the principal stress induced in the material under the complex loading, and whenever such kind of loadings you can see a contact space, so definitely at that case a principal stress will be produced. And so exceed the maximum normal stress in the simple test or material fail. In simple test, so material fail. Good. This is theory is good for brittle material. So when you are going to be use the brittle material, so we can use, if you use this theory, definitely it will give the better result. So let's try to be understand in the simple language. You all might be remember, dear students, we can calculate the yield stress or yield strength of the material by using the UTM, universal testing machine, universal testing machine in the tensile testing or compression test में भी निकाल सकते हैं हमने, but we have performed in the tensile test. So yield strength we can calculate कहाँ से? Universal testing machine. So any kind of material, whatever the material you have, you can calculate the yield point strength of the material just using the universal testing machine, as simple as. So that test is called simple tension test. वहां से आपने निकाल लिया. अब आपको पता है कि मैंने एक्स मटेरियल लिया है जिसका yield point strength मान लो माइल्ड स्टील है, उसका yield point strength जो है दैट इज 160 मेगा पास्कल. पता हो गया आपको. अब 160 मेगा पास्कल, दिस इज द yield point stress ऑफ द मटेरियल. आप थोड़ा सा समझो. फॉर एग्जाम्पल 160 ले लिया आपने फॉर द स्टील फॉर yield point strength. कहाँ से ले नहीं लिया, ये निकाला आपने टेंसाइल टेस्ट. तो देन दैट थ्योरी सेइंग कि व्हाट एवर द स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल, मटेरियल में जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 दोनों है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, उनकी जो वैल्यू है हमेशा या तो कम हो या तो इक्वल हो. ये जो तुमने निकाला है 160, मतलब ये 150 हो सकता है, 125 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है, पर ये 165 या 170 या 175 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर मटेरियल विल फेल. दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी or any other coming theory. The concept will be same in all coming theory. So this meaning होता है. So यही ऊपर लिखा हुआ है in the language, English language. So we are assume that sigma yp is the yield point stress and stress corresponding to yield point, that is called the strength of the material. You all know all that. And we have two principal stresses, sigma 1 and sigma 2, which is applied to that material, which is induced inside the material. So as per this theory is saying this sigma 1, it must be less or equal to sigma yp, otherwise material will fail. ये लिखो हुआ. And second case sigma 2 also, sigma 2 is sigma yp, agar we are going to be considering time. Okay, so what we have done here, we just shift this to here. यहाँ आप देख लो तो sigma 1 upon sigma y2 less equal, plus minus we have put here because plus for the tensile loading के लिए and the negative one for the compressive loading के लिए हमने अपने से रख दिया. ठीक है. So आप देखिए ये डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करिए. हमने ऐसे रख दिया तो ये इसको हमने माना सिग्मा 1 सिग्मा y2 के एक्स एक्सिस की तरफ रख लिया और सिग्मा y2 सिग्मा yp को का जो रेशियो है उसको y की तरफ रख लिया. अब हमने यहाँ 1 हो गया 1 इज मैक्सिमम वैल्यू, ये देख लिया. अब हमको यहाँ पर जब रेशियो निकालेंगे 1 तो इनकी जो वैल्यू रखेंगे इस लेस और इक्वल टू 1 होनी चाहिए.
तो आपको ऐसा एक ये शेप का एक स्क्वायर मिल जाएगा. इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्क्वायर इज if the ratio of sigma 1 and sigma yp inside this square, that material will safe. इसके बाहर गया वो मटेरियल फैल, वो टूट, उसमें एल्डिंग होगी, वो आपका मटेरियल उस खराब हो जाएगा जहाँ पर भी आपने उसको यूज़ किया है. वो कंपोनेंट विल बी it won't be work in future. So dear student, so this is the significance of this theory. So you all might be remember, you all might be understood. So let's move to the second one. So second theory is also similar to this. What is the maximum shear stress? My dear student, you all remember that when we are drawn this Mohr circle, so this part is called tau max. ओके. और ये जो टाउ मैक्स था, ये क्या था? ये सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू. अब निकाल लो यार, सिग्मा था, ये सिग्मा वन था, ये सिग्मा टू था, इसमें इसको माइनस कर दो, उसका आधा कर दो, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे. ये देखो, ये इस पोजीशन पे, ठीक है. सो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर इन टर्म ऑफ दैट. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी हो गई इसकी, ठीक है. सो लेट्स सी as per this theory, what this theory say कि that is maximum shear stress in actual case mean when we are applying the complex loading on that material, if that exceed to the allowable stress in the simple tensile test, what we have already obtained by using the in universal testing, शेयर स्ट्रेस से जो हमको मिलेगा उसकी वैल्यू, इट शुड बी दैट मोर, जो हमने यूटीएम से निकालना उसकी वैल्यू हमेशा इंड्यूस स्ट्रेस, इंड्यूस शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा होनी चाहिए. अदरवाइज दैट मटेरियल विल बी कोलैप्स, ठीक है, वो कोलैप्स कर जाएगा. सो लेट्स अप्लाई दिस थ्योरी. सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ये है टाउ मैक्स लेस और इक्वल टू yp/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस को आप हाफ ऑफ द एल्ड पॉइंट के लिख सकते हो, ठीक है. सो एक्चुअली लिख नहीं सकते हो, होता ही है. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. अब क्या किया आपने, इसको इसके डिवाइड कर दिया. अगेन इसको x मान लो यार, इसको y मान लो और लेस और इक्वल 1 कर लो. सो अब आप देखोगे गौर से, इसको x माना, इसको y माना, और यू जस्ट पुट द ऑल द रेस्पेक्टिव वैल्यू. फर्स्ट टेंशन की, कंप्रेशन की, दोनों वैल्यू आप रखोगे. सो यू विल माइट बी गेट दिस काइंड ऑफ डायग्राम. सो this diagram you have to be draw when you are going to be explain this theory. So this kind of diagram will be, we can get in this here. Or and always you remember this one, this must be one, this be one, this one, and in the direction we will get this inclined line, in this direction we will get this inclined line. So no need to be go in detail, but you just remember these diagram and these conditions, and you will equilibrate the desire as required in this your syllabus. So it's good for you. So now let's move the third one. This is the second one. So you just remember this relation every time. This one. No need to be remember everything for the solving the numerical purpose. So every time you remember just this relation. And if directly they ask the theory question, so you have to be write this statement as well, this diagram, and this is this numeric, this derivation. Okay, so let's move toward third one. The third is say the maximum principal strain. अब देखो बेटा, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या हो, कैसे निकाल सकते हो. आपके पास अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है एंड सिग्मा 3 है, यही होते हैं इफ देयर इज 3 डायमेंशनल लोडिंग.
तो आपको मैक्सिमम कौन सा होगा, इस जो इधर वाले की तरफ से वही होगा मैक्सिमम, इसलिए हमने लिया सिर्फ E1, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली दिस थ्योरी क्या बता रही है आपको, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल मतलब E1। अब E1 को हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, आपको लिखा सिग्मा 1/E माइनस, ये दोनों भी तो लग रहे हैं, और इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इनके lateral component of sigma 2 and sigma 3 you just get by just multiply by the Poisson's ratio in direction of the sigma। ओके, सो आपको ये रिलेशन मिल गया, और इसको शायद हमने लास्ट या कभी डिस्कस भी कर चुके हैं, ये कैसे मिला शुरू फर्स्ट यूनिट में। सो वेयर इज द यंग मॉडुलस एंड P is the Poisson's ratio। Let's come to the again this diagram first। Let's see this। Okay, come to here. As per this theory what saying, the principal strain developed due in the complex loading, it must be less or equal to the strain developed in material corresponding to the yield point। देख लो, yield point स्ट्रेस है, उससे ये डिफॉल्ट कर दो तो ये स्ट्रेन बन जाएगा, और इनकी वैल्यू रख दो तो ई कैंसिल हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, 2 डायमेंशनल लोडिंग, हमने अभी 3 डायमेंशनल के लिए ये होगा, पर हम 3 डायमेंशनल के लिए करेंगे, तो 3 डायमेंशनल जैसे करेंगे तो ये सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा, और ये रिलेशन विल बिकम लाइक दिस। और आप अगर इस वाले को यहाँ रख दो x और यहाँ रख दो y और इसमें आ जाओ, सो यू विल गेट द दिस लाइक दिस, ये डायग्राम। और ये का कॉर्नर ऑलवेज नॉट, इट शुड नॉट बी मोर देन 1, इस कॉर्नर में 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये ही उसकी कंडीशन है। पर ऐसा बनने के बाद आपको यू आर गोइंग टू बी सी दैट दिस वन, ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो जो मटेरियल का आएगा रेशियो ऑफ दिस, वो सेफ होगा, इसके बाहर गए तो अनसेफ। देन फोर्थ वन, ठीक है। सो फोर्थ वन थ्योरी से द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या हेग थ्योरी। This theory is based on strain energy absorbed during the loading of the component। As per this theory, the failure or yielding of the material occur when the strain energy per unit volume stored in the machine component exceed the strain energy stored in the volume at the yield point stress in the simple tensile test। Same thing, एक आपको सिंपल टेंसाइल टेस्ट से जो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख ली तुमने वो, और दूसरी जब आपकी कॉम्प्लेक्स लोडिंग होगी वहाँ पर जो सेम चीज़ प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो पहले तुमने सिंपल टेंसाइल टेस्ट से निकाली है। चूंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन यू अप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स लोडिंग। So if there is a principal stress sigma 1, sigma 2 and sigma 3, then this is a formula for that, is equal to 1/2 is sigma 1 का स्क्वायर sigma 2 का स्क्वायर प्लस sigma 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू sigma 1 sigma 2 sigma 1 2 प्लस sigma 2 3 प्लस sigma 3 1। ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। देन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट ही आप निकाला, स्ट्रेन एनर्जी जब मैं पढ़ाया था, आप फिर से जाके कॉपी पलट के देखना, ये आ जाता है वहाँ पर सिग्मा 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 वाई पी का स्क्वायर अपॉन 2e, ये आप निकाल लेना, देख लेना। सो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, इसको और सॉल्व किया, यहाँ आ गए। अब हमने वी हैव जस्ट अप्लाइड द कंडीशन ऑफ 2 डायमेंशनल। जैसे तुमने 2 डायमेंशनल बात करने स्टार्ट किया तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वाले जहाँ जहाँ आपको बाई 3 होगा, यहाँ है सॉरी बाई 3 नहीं सिग्मा 3, ये अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये रिलेशन ऐसे बन जाएंगे। अब इस भाई को इसको भेज देंगे इसके नीचे, तो नाउ दिस बिकम, देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये कुछ इलिप्स जैसा हो भी गया, और इसको अगर और छोटा छोटा करेंगे यहाँ वही स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो इट्स बिकम एक्स वाई 2xy,
लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये इसका पहला बोला, ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। ये आपको हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर आवाज आ रही है आपकी? नहीं, कहाँ से गायब हुआ था? यस सर, आ रही है। यस सर आ रही है आवाज। अरे गायब कहाँ से हुआ था? अरे इसकी लाइट कुछ पता नहीं क्या हुआ था, नेट चला गया था। बताओ ना कहाँ तक था? वो 3 डायमेंशन 0 ले रहे थे ना वैसे। यस सर, इसके ऊपर स्लाइड फोर्थ स्टार्ट 3 हुआ था, डायमेंशनल फोर्थ स्टार्ट हुआ था क्या? स्ट्रेन एनर्जी वाला हुआ था क्या? यस सर, यस सर, यही। यस सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर दो। अटेंडेंस हो गई ना सबकी? यस सर, हो गया। यस सर हो गई ना, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं करते, चलो हम बढ़ा देते हैं ऐसे, 10 मिनट तो बचे ही। सो स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये है, ये आप याद कर लो एज इट इज़। और ये वाला तो मैंने बता चुका हूँ आपको 1 डायमेंशनल लोडिंग के लिए। ठीक है, सो सिंपली हमने क्या किया, इसको ये दोनों को वही लेस और इक्वल किया और इसको सॉल्व किया। 3D अपने से लिए तो सिग्मा 3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। दिस रिलेशन और 2D के लिए हमको एक एलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या मिलता है, क्योंकि आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है। देन मैक्सिमम, लास्ट वन इज द maximum shear strain energy और distortion theory, that is also called a von Mises इसलिए क्योंकि इसको इस theory को उन्होंने propose किया था। So according to this theory, the failure by yielding occur when the energy used in changing the shape of unit volume of component is equal to distortion energy per unit volume at the yield strength ऑफ अ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंसाइल टेस्ट। दैट सिंपल थिंग है ये कि आप पहले टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट जो भी किए हो उसमें आप सिग्मा वाई पी की वैल्यू निकाल लो और उस सिग्मा वाई पी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे और वो शेयर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई पी का स्क्वायर अपॉन 6g। उसकी वैल्यू कभी भी जो अब इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग के जो प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो दैट मटेरियल विल फेल। तो ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग का फॉर्मूला ये वाला, ये सिंपल लोडिंग का फॉर्मूला। अब इनको आपस में इक्वेट कर दो लाइक दिस, लेस और इक्वल। तो जो कट रहा है कटेगा, जी गया यहाँ से, टू इस साइड आ गया, ये एक्सप्रेशन ऐसे बन गई। नाउ वी आर जस्ट पुटिंग 2D फॉर केस ऑफ 2D। तो 2D के लिए फिर वही सिग्मा गया, ये सिग्मा 3 यहाँ से गया, तो ये हो जाएगा, इसको वाले को ओपन कर देंगे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये लाइक दिस हो जाएगा। यहाँ देख लो आपको इसमें सिर्फ एक ही बचा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बचेगा ऐसा। ठीक है, तो ये यूं इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा, देखो जरा, है ना, ये देखो ये 2 हो जाएंगे ना सब, ये वाला देखो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला 2 हो जाएगा, तो सबका 2 बाहर कट जाएगा, इसका 2 और इधर के 2 जो आएंगे जुड़ने के बाद। सो अब बचेगा सिग्मा 1 अपान वाई पी का होल स्क्वायर और सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा वाई पी का स्क्वायर एंड सिग्मा 1 ये ऐसा बन गया। तो फिर हमने वही किया, सिग्मा y2 और सिग्मा y1 को एक्स एक्सिस में डिनोट वो किया। इसमें भी इलिप्स ही बनता है, इसका इलिप्स थोड़ा छोटा रहता है और उसका वाला थोड़ा बड़ा रहता है, बस इतना सा अंतर है। वैसे अलग अलग से बनाओगे तो एक जैसे दिखता है, उसमें थोड़ा सा इस साइड मोटा हो जाता है, इस साइड, बस और कुछ नहीं।
सो दिस इज अबाउट द ऑल थियरीज ऑफ फेल्योर। ये इसका कंपैरिजन है, ठीक है। तो कंपैरिजन में ये है कि सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ होगा, कैसा होगा, वो अपन देखेंगे कल। अलग अलग मटेरियल के लिए होता है, कल डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, हमको तुमको भी टाइम देना है। हाँ, ये लिया है फेल्योर क्राइटेरिया। ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सी बेस्ट है ये दे दिया, ये वाली, और डक्टाइल के लिए बेस्ट कौन सी, ये, ठीक है। सो दिस इज, थैंक यू सो मच। अब आप क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि थोड़ा टाइम देना जरूरी है। वी हैव 5 मिनट। जो नहीं आया होगा थोड़ा सा दिमाग में पूछ सकते हो। ठीक है। देखो, मैं पहले वाले में भी समझाना पड़ा, देयर इज ए 2 पार्ट, और सब थ्योरीज ऑफ फेल्योर में उसके नाम में ही वो छुपा हुआ है। पहली चीज कि वो किसकी डिस्कशन कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इज दैट टेंसाइल और कंप्रेशन टेस्ट के द्वारा, टेस्ट के थ्रू आप यील्ड पॉइंट स्ट्रेस निकाल लो, और दैट यील्ड पॉइंट स्ट्रेस इज विल बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वो निकाल लिया। अब उसका यूज करते हुए आप वहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल लो, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो, शेयर स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो। वो एक अलग डेटा हो गया। अब जो लोड लगाओगे उसके कारण जो प्रोड्यूस हो गई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी एंड शेयर स्ट्रेन एनर्जी, वो ऑलवेज कम होना चाहिए जो तुमने टेस्ट करके निकाला है। तो मटेरियल सेफ रहेगा, नहीं तो अनसेफ रहेगा। ये है इसका एसेंस। ऑल थ्योरीज में सब जगह एक ही बात कही गई है कि ये वाला हमेशा उससे कम होना चाहिए, ये वाला उसके कम होना चाहिए, या उसके बराबर जा सकता है। उससे ज़्यादा गया तो मटेरियल भी फेयर। ये है पांचों थ्योरीज के बारे में। और किसकी बात कर रहा है, पहले वाले में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेगा, दूसरे वाले में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करेगा, तीसरे में मैक्सिमम प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेन की बात कर शेयर नहीं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करेगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये आपका पहले वाले में मैंने इसलिए क्या है कि आप कंपैरेटिबल स्टडी यहाँ से कर लेना। अगर नाम याद रहा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ आप ये भी रखना कि पहला रंकाइन, दूसरा ट्रेस्का, तीसरा सेंट वेनेंट एंड हेग एंड वन माइसिस। कभी कभी इधर से भी पूछ लेता है। तो आप यही इतना ही है इस वाली यूनिट में, खत्म हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे 2 4 6 जो भी जितना भी होगा, और ये इसमें अब कुछ नहीं है। तो इस अपन 31 तक 5 यूनिट खत्म कर लेंगे होप से। अब नवंबर में क्लास बंद है मेरी तरफ से, ठीक है। अब जाओ थोड़ा सा पढ़ लो, थैंक यू सर। ठीक है। और ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे तो दिमाग में बैठा लेना। ये बस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। अब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने के लिए अब यहाँ बात वहाँ पहले यूनिट में कर चुका है, तो वो फार्मूला वहाँ से लाना पड़ेगा। ये चीज़ तो अंडर समझ में आ रहा होगा, तो वो वहाँ से रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं निकाल के बताएगा वो इस यूनिट में, वो वहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, होप यू आर अंडरस्टूड। चलिए, अब दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जो लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट में कॉपी सबमिट नहीं करी है, वहाँ मैं उसकी कॉपी चेक नहीं करूँगा। किसी ने फोटो खींच के भेज दिया है, किसी ने मेल कर दिया है, मेल वेल नहीं चलेगा। जिसने मेरा अपलोड करके भेजा है वही कॉपी चेक होगी। फिर ये मत बोलना सर मैं तो ऐसा, मेरा तो वैसा, मेरा फ़ोन ख़राब था, मेरा नेटवर्क ख़राब था। मैं 1 बजे तक खोल के रखा था कि डाले कोई भी और डाल दे, मैंने तो कुछ नहीं बोला किसी को। लेकिन अभी किसी का कुछ गड़बड़ तुम्हारे साइड से तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने इसलिए लिखा था कि यूज द फॉर्मेट। किसी ने पहला क्वेश्चन, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पेज सीक्वेंस ही नहीं है तो भी मैं नहीं चेक करूँगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और सबको बता देना, मैं भी मेल मैसेज भी डालने वाला हूँ ग्रुप में। इसीलिए मैं एग्जाम के 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था, भाई साहब स्कैनर नहीं है, स्कैन करता नहीं बनता तो सीख लो, नहीं हो तो डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, जो करना करो, बट आई वांट इन प्रॉपर फॉर्मेट। अब एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला। तो जो जिसका फॉर्मेट में नहीं हो तो जाओ रोते रहना, और जिसका है कोई दिक्कत नहीं।
मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, कल तक रिजल्ट भी दे दूंगा। ठीक है, जाओ एंजॉय योर लाइफ।